Good afternoon, everybody. Today I am going to share some of my feelings as a token of respect towards Sinha sir. Coming straightway from a school background and joining a university system has been a thrilling experience for me. Let me recollect my first day on the campus. As I entered the CUJ premise, my eyes ceased to hold still, even for a second, as everything appearing before me seemed unfamiliar. I was totally lost in this strange land, covered with trees of all kinds. It was 10th July 2012, as my first class was scheduled here. I still remember my first encounter with a French bearded, handsome persona who appeared very differently with his unfamiliar appearance. My parents were sitting inside the department. However, I preferred standing outside due to hesitation. Actually, I was a bit nervous at the very thought of living with strangers into a strange land, and moreover, to bid my parents a goodbye for the first time in my life. As I entered the department, he was smiling so affectionately that gave me enough confidence to move forward and greet him. He asked for my name and also its meaning. Knowing that Anam means gift of God, he smiled again and said, Anam is my daughter. Eyes of strangeness melted in no time with the warmth he exhibited. But to accept someone else as my father in front of my own father was something really weird for me. Then came 6th October 2012. Excitement was living in every soul as the most awaited freshers party knocked the door. At the end of the evening, my name was echoed in the entire auditorium as he announced Miss Fresher 2012. When I went to the stage for receiving the prize, he whispered into my ears, I am proud of you. The happiness which I saw in his eyes that moment was one of a father who feels overwhelmed on the success of his child. That moment I realized the words he spoke to me the very first day I met him. Anam is my daughter. Professor B.P. Sinha is a beautiful amalgamation of a very adorable academician as well as a powerful administrator. He is a perfect literator with an appreciable command over Hindi, English as well as Urdu literature. To all of us, he personifies life and literature in its true sense. However, it will remain in our records of regret that our batch never got an opportunity to attend his lectures. Notwithstanding the same, we never felt hesitant in visiting him in the department as he is so accessible and warm. Today, when we all have assembled here to witness the completion of his service tenure, I am facing dearth of words. Dictionary में लफ्ज़ नहीं है. Did I ever thought of living such a moment? No, not at all. However, life has to move forward. So now, I would like to conclude by saying that काश जाते हुए इस वक्त को हम रोक सकते, आपके साथ गुजरा हर लम्हा जोड़ सकते, वो लम्हे जो लौट कर अब नहीं आ सकते, वो लम्हे जिन्हें हम चाह कर भी नहीं जी सकते। न जाने कितनी यादें जो आपने दी हैं हमें, न जाने कितनी यादें जो आपने दी हैं हमें। काश
काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। Thank you so much, sir, for everything, and we wish you a very happy and healthy life ahead, and promise to carry forward your visions and teaching. Thank you for everything, sir. श्रद्धेय सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष भाषा केंद्र विभाग प्रोफेसर पीपी सिन्हा की शुभ विदाई के अवसर पर आपका छात्र रणधीर कुमार यह अभिनंदन पत्र आपको अर्पित करता है। बसंत की मधुर बेला नूतन एवं खुशी वाले कार्यों को लाता है, परंतु विश्वविद्यालय परिवार एक विद्वान पुत्र प्रोफेसर पीपी सिन्हा की सेवानिवृत्ति से मर्माहत है। आपने रांची विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पीएचडी एवं पुणे फिल्म संस्थान से पढ़ाई करने के बाद 10/8/1982 से रांची विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य में लग गए। तब से शिक्षण के क्षेत्र में अलग ज्योति जगाते हुए सन 2011 में इस विद्यालय में तत्लीन रहे। सा विद्या आविमुक्तये का आदर्श लेकर शिक्षा क्षेत्र में नई जागृति लाते हुए आप 31 जनवरी 2014 को अवकाश ग्रहण किए। सुव्यक्तित्व के आईने में आप उच्च व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा एवं निष्ठा समाज में कायम किए। आप एक कवि, लेखक, नाटककार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, हितैषी, समाज सुधारक एवं मृदुल स्वभाव के धनी व्यक्ति साबित हुए। समाज के कल्याणार्थ योगदान आपने न सिर्फ इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि आपने अपने रचनाओं से, अपने कर्मों से समाज में नई क्रांति लाई। अनुशासन एवं विश्वविद्यालय के विकास में आपकी भूमिका, आप अनुशासन प्रिय होते हुए भी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर दिखे तथा चिंतित रहे। अपने कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय में बहुत कार्य करते हुए सुरक्षा पर ध्यान दिए, जो इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाता है। अध्यापक एवं अभिभावक का दायित्व, आप एक श्रेष्ठ अध्यापक एवं अभिभावक साबित हुए। आप अंग्रेजी एवं हिंदी की विद्वता से छात्र एवं समाज का कल्याण किया। आपने अपने विषय में महारत हासिल किए और छात्रों में न सिर्फ अंग्रेजी के प्रति बल्कि हिंदी के प्रति ज्ञान जगाकर आपके नेतृत्व में शिक्षकों के अथक परिश्रम के बदौलत भाषा केंद्र के छात्रों ने न बल्कि भारतवर्ष में अपना धमाल मचाया, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर नाम कमाया। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों, अभिभावकों एवं समाज के प्रति कृतज्ञता, मृदुल स्वभाव के कारण सबों के साथ आपका सद्व्यवहार बना रहा, अतः संभव सबों की मदद करना आपकी आदत रही। समाज के किसी भी व्यक्ति को आपसे निराशा नहीं हुई। आदर्श गुरुकुल के प्रेज से मैं आपसे एक कुशल प्रशासक एवं सुयोग्य आचार्य की तरह मार्गदर्शन मिलता रहा। आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, सेमिनार, वर्कशॉप, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों के मानसिक विकास करते रहे। प्रेरणा स्रोत के स्तंभ, आपके उच्च चरित्र में हमें प्रेरणा मिलती रही। आप हमेशा प्रेरणा स्रोत के स्तंभ में विश्वविद्यालय में याद किए जाएंगे। मैं रणधीर कुमार आपकी दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूँ। शुभ विदाई, शुभ कामना, शुभकांक्षाओं के साथ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस महान कवि, इस महान नाटककार के साथ रहने का मौका मिला, जिनका शिष्य बनने का मौका मिला। मैं जितना कुछ जानता हूँ, मैं इनके बारे में एक कविता लिखा हूँ, अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। कहते हैं कि जो सदा आप बहते रहे नदियों की तरह, कि जो सदा आप बहते रहे नदियों की तरह, पहुँच गए आप यहाँ, पहुँच गए आप यहाँ फूलों की तरह, पहुँच गए आप यहाँ फूलों की तरह। क्या मैं कहूँ आपके दिलों की राज, तालियां जरूर बजाइएगा। क्या मैं कहूँ आपके दिलों की राज, आप सदा गुनगुनाते रहे भंवरों की तरह, आप सदा गुनगुनाते रहे भंवरों की तरह। क्या कहूँ मैं आपके, क्या कहूँ मैं आपके ज्ञान का भंडार, क्या कहूँ मैं आपके ज्ञान का भंडार। अब जहाँ भी गए वहाँ खिलते रहे कमल की तरह, आप जहाँ भी गए वहाँ खिलते रहे कमल की तरह। कैसे मैं करूँ गुमान तेरी, कैसे मैं करूँ गुमान आपकी इंसानियत का, छाए रहे यहाँ आप सदा
बादल की तरह। कैसे मैं करूं गुमान आपकी इंसानियत का, छाए रहे आप यहाँ सदा बादल की तरह। दुआ करता हूँ कि ये आपका, दुआ करता हूँ कि ये आपका चमकता हुआ दिन, दुआ करता हूँ कि आपका चमकता हुआ दिन सदा सलामत रहे चंदा की तरह, सदा सलामत रहे चंदा की तरह। 大家好， Good afternoon, everybody. 亲爱的朋友们， Dear friends, 今天我们代表中文系到这儿， today on behalf of Chinese Center, 我们在这儿辛娜老师的告别仪式。 we are present here to bid farewell of Sinha sir. 他作为语言学院的院长， He worked as a dean, a school of languages. 他每次帮助了我们， He helped us very much. 他的工作方式独特的，所以老师们和学生们很喜欢。 He helped. His working style is so famous. As a result, all teachers and students like him very much. 他在所有学生分中很有名， He is also famous among all the students. 他把大学生的每个学生当作自己的孩子， He liked all the students as his own son and daughter. 他很喜欢学生们。 We all like Sinha sir. 我们不能相信从明天起他不会来我们大学， We can't imagine that Sinha sir will be not with us from tomorrow. 但是他的祝福永远会跟着我们。 But his blessing will be always with us. 谢谢。 Thank you.